Good morning, students. So let's move ahead and let's see the remaining deductions here. So what we have seen in the last lecture is deduction under section 16, that is salary income के deductions हमने देखे थे. Number one, we have seen that was standard deduction. Second was entertainment allowance, and third is professional tax or tax on employment. And if you remember, we have concluded on this particular line that we are going to see deductions from gross total income, deduction under chapter 6A, or deduction from ATC to ATU. Now let's see all these deductions. Very interesting part. Income tax is great and offering all these deductions for all of us if we are going to saving. So it is given for encouraging the savings. Along with that, there are certain expenses which you cannot avoid, and income tax is that these expenses, if you are paying, then the same will be allowed as deduction. On that you need not pay any kind of tax. So let's see income tax deduction list deductions अंडर सेक्शन ETC, ATCCC, ATCCD एंड ATD. ये कुछ मैंडेटरी डिडक्शन है, नॉर्मल डिडक्शन है जो हर इंसान को चाहिए और उसमें क्लेम करने भी चाहिए. एंड ऑब्वियसली आवर कॉन्टेक्स्ट इज द करंट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज प्रीवियस ईयर इज 21-22 एंड असेसमेंट ईयर इज 22-23. दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. सो इनकम टैक्स सेक्शन 80 डिडक्शंस फॉर FY 21-22. Let's see why all these deductions are given. The background is given here. These are basically investment, students. These are savings for the future of employee and their family members, so that they can save certain amount and their future will be secured. Along with that, there are certain payments, say tuition fees of employee children, which is going to be included into the school or college there. So that component is going to be taken care here, and same is offered as reduction under section ATC. Along with that, if you are purchasing any house property, then in that case stamp duty and registration charges for the same is also allowed as reduction under section 80C. तो वही सारे deduction दिए. So you can see the background here. Income tax department, with a view to encourage savings and investments amongst the taxpayer, have provided these various deductions from the taxable income of the employee under chapter 6A, which I already told you. And ATC being the most famous, most normal, most famous. वैसे तो नंबर ऑफ डिडक्शंस है स्टूडेंट्स. ATC से लेके ATU तक, यानी C से U तक इतने सारे अलग अलग अल्फाबेट के वहां पे ये रहेंगे. दैट इज ATC टू ATU, यानी C से लेके U तक ये सारे डिडक्शंस आपके लिए रहेंगे, बट नॉर्मल जो है वो ATC के अंडर है. सो ATC being the most famous, there are other deductions which are also beneficial for the taxpayers to reduce their tax liability. Let's understand these deductions in detail. तो ये डिडक्शन क्यों दिए जाते हैं? Obviously to encourage saving and investment. तो ATC सबसे पहले देखते हैं अपन कि क्या है ATC में. Now you can see here, ATC says it is the most popular, absolutely, and favorite sections amongst all of them in the taxpayers, as it is allowed to reduce the tax liability of a person by making tax saving investments or incurring eligible expenses. So ATC is for certain tax saving investments or savings or certain mandatory expenses which you can pay and you can claim as deduction under section ATC. On that you need not pay any tax. It allows a maximum deduction of rupees 1.5 lakh every year from the taxpayers total income. यानी ATC में आप ज्यादा से ज्यादा कितना सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स? So ATC you can save max amount rupees 1.5 lakh per annum, or actual amount of investment whichever is lower, because income tax believes in giving the efficient deduction. कितना देगा income tax आपको? 1,50,000 per annum, or actual investment or actual kind of expenses which has been paid under section ATC. यानी ऐसा नहीं है कि आप 20 लाख सेव करो, 20 लाख पे करो तो उसका डिडक्शन मिलता है. डिडक्शन ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख पर एनम मिलता है. अब ये 1.5 लाख किस किस के लिए है, दैट वी आर गोइंग टू सी. उसी के साथ और कुछ चीजें ATC के साथ यहाँ पे देखते हैं. This benefit is availed only by individual and Hindu undivided family. For rest of the associate, this deduction is not applicable. Say companies, partnership firms, limited liability partnership firms, उनके लिए deduction नहीं है. ये deduction है एक individual employee के लिए, individual person के लिए. Along with that, Hindu undivided family also can claim this particular deduction. That is what given here. And section ATC includes, ATC में और क्या क्या है? ATCCC, ATCCD1, ATCCD1B. This is a separate deduction. And ATCCD2. हम सिर्फ ATC की बात करते हैं तो डिडक्शन एप्लीकेबल इज 1.5 लाख पर एनम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर. लेकिन ATC में हम अगर ये सारे सेक्शन ऐड करते हैं,
most probably if you are going to add this one, that is ATCCD 1B, अगर आप ATCCD 1B की बात अगर करते हैं तो इसमें अलग से 50,000 का डिडक्शन है per annum for contribution into national pension scheme of any of the companies, may it be SBI, ICICI और अटल पेंशन योजना, ऐसी कोई भी जो पेंशन स्कीम है, एन्युटी जिसको हम बुलाते हैं, पेंशन स्कीम बुलाते हैं, उसमें अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो अपार्ट फ्रॉम ATC यू आर लायबल टू गेट अ सेपरेट डिडक्शन ऑफ ₹50,000 पर एनम। मतलब अगर मैं ATC प्लस ATCCD 1B को मिलाता हूं तो टोटल डिडक्शन मेरा हो जाता है 2 लाख पर एनम every year। per annum का मतलब ही every year है। so you can claim max deduction under section ATC plus ATCCD 1B ₹2 लाख per annum। अब देखते हैं ATC में क्या क्या आता है। वैसे ATCCD 1B तो क्लियर है, it is only for employee or assessee contribution towards national pension scheme। यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए per annum का डिडक्शन ले सकते हैं। बचे वाले 1.5 लाख का डिडक्शन के लिए क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप यहां पे देख सकते हैं ATC में क्या दिया है। ATC अलाउज डिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, क्या क्या है? नंबर 1, इफ यू आर हैविंग अ कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, किसी भी प्रोविडेंट फंड में अगर आप पैसे डालते हैं एक्सेप्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो आपको ATC का डिडक्शन मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप कितना डाल सकते हैं? सेम, दैट इज 1.5 लाख पर एनम। दूसरा ऑप्शन क्या है सेविंग में ATC का? आप देख सकते हैं दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी इज प्लेन वेयर यू आर गोइंग टू टेक इंश्योरेंस एंड पे प्रीमियम। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ये हमारे मार्केट से रिलेटेड होती है। सेंसेक्स और निफ्टी के साथ मार्केट ऊपर जाएगा, पॉलिसी वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे, पॉलिसी वैल्यूएशन नीचे, तो ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, ये लेना है या नहीं लेना है दैट इज अनदर थिंग, बट एग्जम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन ATC, क्योंकि ये टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो मार्केट के साथ रिलेवेंट है। तो पहला PF contribution made by the employee except URPF, it can be PPF, it can be RPF, it can be EPF or इट कैन बी SPF। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी कभार बुलाया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये तीनों में डिडक्शन ATC का एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा डिडक्शन मैंने बोला यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू ULIP और कंट्रीब्यूशन ऑफ an assessee towards ULIP is also qualifying deduction under section ATC। उसी के साथ if you are doing an FD for 5 years or more than that in any bank, in any cooperative society, same is applicable for deduction under section ATC। तो अभी तक मैंने कितने बोले सेविंग के डिडक्शन ATC में? 3। नंबर 1 contribution to any PF except URPF, number 2 contribution to any ULIP, and number 3 that is investment into any FD for more than 5 years in a bank or a cooperative society also qualifies or eligible for deduction under section ATC। उसी के साथ और कुछ डिडक्शन है जो सेविंग के फॉर्म में हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, विच इज कॉल्ड एज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ELSS इसका शॉर्ट फॉर्म है, विच इज अ फेमस वन। ELSS में आप अगर पैसा लगाते हैं जिसका लॉकिंग पीरियड 3 साल तक है, मिनिमम 3 साल आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, मिनिमम 3 साल आपको पैसे लॉक करके रखने पड़ेंगे। ये साल लगाए तो आपको उसका डिडक्शन जरूर मिलेगा, बट 3 साल तक पैसे विड्रॉ नहीं करने हैं, दैट इज ओनली द कंडीशन देयर। सो इफ यू आर सेविंग इनटू ELSS एज वेल, देयर इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स कॉल्ड एज क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स है जहां पे आप 3 साल का लॉकिंग रखते हैं, तो ये भी क्वालिफाई करता है अंडर सेक्शन ATC। सो दिस इज 4th इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड। 5वां दैट यू कैन इन्वेस्ट इनटू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में भी आप अगर पैसा लगाते हैं तो दैट क्वालिफाइज for deduction under section ATC। So this is number 5. Number 6 we are having in the form of investment into national saving certificate। आपने अगर national saving certificate में पैसा इन्वेस्ट किया, same qualifies for deduction under section ATC। Next to that, if you are having any investment into any of the pension plan or annuity plan, same qualifies for deduction under section ATC। Yes, this is apart from ATC एंड हमने जो देखा था ATCCD 1B, तो ये छोड़ के भी आप ATC में भी पेंशन में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी बोलेगा कि उधर अगर लगाना है CCD 1B में बताना है, तो यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि योजना। So if you are having a girl for her education purposes, for her future purposes, you can do this saving and this is qualifying for
डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C सुकन्या समृद्धि योजना। तो क्या क्या है इसमें, पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया दैट यू कैन कंट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ एनी पीएफ एक्सेप्ट यूर पीएफ, फिर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या फिर आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड, यू कैन गो फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड, यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स बट इन द फॉर्म ऑफ ELSS। Fourth, you can go for any kind of FD for 5 years or more than that in a bank or in a cooperative society. Fifth, you can go for national saving certificate, तो उसमें पैसा लगाएंगे आप तो चल जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, उसी के साथ मैंने आपको बोला एनी एन्युटी और पेंशन प्लान, और आखिरी में मैंने आपको बोला दैट सुकन्या समृद्धि योजना। सो ऑल दीज क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अलॉन्ग विद दिस another one, that is any insurance premium paid for life insurance, it may be for LIC or any other company। तो देखा जाए तो 8 से 9 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए है अवेलेबल, लेकिन डिडक्शन उतना ही है, कितना 1.5 लाख पर एनम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। फिर से मैं गिनाता हूं कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। नंबर 1 is your provident fund contribution except URPF. Number 2 is unit linked insurance policy. Number 3 is mutual funds or ULIP. Sorry, it is mutual funds or you can say that ELSS, that is equity linked saving schemes. उसी के साथ मैंने आपको बोला any kind of national savings certificate investment. Along with that, I have told you that any kind of pension scheme is also coming under section 80C. उसी के साथ मैंने आपको बोला सुकन्या समृद्धि योजना is the next one as far as any investment is concerned. Next to that is post office saving bank deposit and then FD for 5 years or more than that in any bank or cooperative society. तो ये लगभग 8 से 9 आपके पास ऑप्शन है जहां पे आप सेव कर सकते हैं। एंड along with that the next one is life insurance policy of any of the company। तो ये 8 या 9 ऑप्शन है जहां पे आप सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। ये सेविंग है। अब टिपिकली 1-2 पेमेंट है यहाँ पे जिस पे भी आप 80C का डिडक्शन ले सकते हैं। पेमेंट नंबर 1, दैट इज ट्यूशन फीस ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 इंटू ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग डोनेशन और डेवलपमेंट चार्जेस। यानी ट्यूशन फीस का जो कंपोनेंट आता है हर पेरेंट्स के अपने बच्चों के फीस में, ट्यूशन फीस बड़ा कंपोनेंट आता है। अगर आप फीस भरे होंगे 60,000 रुपए का आपके चाइल्ड का, आपके बॉय का या आपके गर्ल का, तो 60,000 में से मेरे ख्याल से लगभग 45,000 का कंपोनेंट ट्यूशन फीस में आता है। इट मे बी इन स्कूल और इट मे बी इन कॉलेजेस। तो ये 45,000 यू कैन क्लेम एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सो डू रिमेंबर दिस। बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि सेम कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ पे आप ये 45,000 क्लेम कर सकते हैं। तो मैक्स आई कैन सी दैट ऑलमोस्ट 70-75% ऑफ योर टोटल school fees or college fees is always in the form of tuition fees and can be claimed as reduction under section 80C। तो ये भी आप tuition fees यहाँ पे claim कर सकते हैं as a mandatory payment में। दूसरा, any stamp duty or registration charges paid on purchasing a new home can be claimed as reduction under section 80C। यही दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। Stamp duty and registration charges for purchase of property can be claimed as reduction under section 80C। So दो पेमेंट है। और तीसरा एक पेमेंट है दैट एनी प्रिंसिपल अमाउंट रिपेड टुवर्ड्स योर होम लोन। तो 3 पेमेंट है और बाकी 9 सेविंग हमने देखे। तो 3 पेमेंट में क्या क्या है? नंबर 1 प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, नंबर 2 ट्यूशन फीस ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट और डोनेशन चार्जेस, एंड नंबर 3 स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर परचेस ऑफ अ प्रॉपर्टी। ये तीनों आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। लेकिन याद रखिए 80C में पहले 9 और आखिरी के 3, 9 सेविंग और 3 आपकी मैंडेटरी पेमेंट, ये सारा मिला के डिडक्शन आप ज्यादा से ज्यादा क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख पर एनम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। यानी इनकम टैक्स ने यहाँ पे कैप रखा है, लिमिट रखा है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख ही सेव कर सकते हैं 80C में। और 80CCD 1B में contribution towards national pension scheme in any of the company's pension fund, you can invest your amount and that can be claimed as reduction separately apart from 80C, and that is 80CCD 1B rupees 50,000 per annum। यानी देखा जाए तो पूरा मिला के 80C प्लस 80CCD 1B जो कंसिडर किया जाता है C में ही, तो टोटल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 2 लाख रुपए पर एनम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट, लेट मी take again all of them as far as your savings are concerned। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या दिया है। What is given? The first one is in the form of certain payments, that is principal repayment towards home loan, then stamp duty and registration charges for purchase of property, and next to that it is obviously
The next one, as far as the payment is concerned, that is tuition fees of employed children. तो ये 3 पेमेंट है, बाकी सारे इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ हो, ईपीएफ हो, एलआईसी प्रीमियम हो, ईएलएसएस हो, म्यूचुअल फंड्स, along with that national pension saving certificate NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, senior citizen saving schemes, ULIP, tax saving FD for 5 years, and last but not least that is infrastructure bonds. अगर कभी कभार गवर्नमेंट इश्यू करता है, कोई कंपनी इश्यू करता है जिसको एग्जम्पशन है, तो ये सारे एप्लीकेबल है फॉर एटीसी एग्जम्पशन. एटीसी के साथ जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ATCCD 1B, ये देखिए, एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹50,000 इज अलाउड for amount deposited to NPS account. Contribution to even Atal Pension Yojana is also eligible for deduction. तो ये कहीं पे भी आप पैसा डाल सकते हैं. ATC plus ATCCD 1B सारा मिला के 2 लाख पर एनम का डिडक्शन आप ले सकते हैं. अब ये किसको मिलेगा? For every salaried employee, for every individual it is applicable. फिर आप सैलरीड नहीं हुए तो भी आप ये डिडक्शन ले सकते हैं. As an individual, if you are having a professional income, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, तो भी आप ये डिडक्शन ले सकते हैं. So all these deductions are very much applicable. हमें इनकम टैक्स बचाना है. एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं. अगर आपका इनकम 20 लाख रुपए है, हाउ मच इज योर इनकम? 20 लाख रुपीज. तो 20 लाख में से आप अगर ये 2 लाख रुपए सेव करेंगे तो 20 लाख पे अगर 10 लाख के ऊपर कोई भी इनकम चला जाता है तो उस पर 30% का स्लैब है सीधा सीधा. And any income in excess of ₹10 lakh is taxed at 30% per annum. यानी 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा. तो ये जो आप 2 लाख रुपए सेव करेंगे तो 20 - 2 हो जाएगा, 18 हो जाएंगे. क्यों? 2 लाख आपने ATC और ATCCD 1B में सेव किया. जैसे ये 2 लाख सेव किए, आपने 30% सीधा सीधा बचा लिया. तो 2 लाख का 30% कितना होता है स्टूडेंट्स? दैट कम 60,000. 2 लाख इंटू 30% इज 60,000. और ये 60,000 पे आपने 4% का सेस भी बचा लिया ऑन कैलकुलेटेड टैक्स लायबिलिटी. 60,000 रुपए आप अगर टैक्स भरते तो टैक्स पे और सेस वगैरह लगता है जो 4% का है. उसमें एजुकेशन सेस है, सेकेंडरी एजुकेशन सेस है, कृषि कल्याण सेस है, स्वच्छ भारत सेस है. तो ये सारा मिला के 4% है लगभग. तो 60,000 का फिर से आप 4% बचाएंगे एंड दैट विल बी 2400. मतलब आप 62,400 बचाएंगे. आप अगर 30% के टैक्स लैब में है और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके 62,400 तो ऐसे ही बच गए. बाकी जो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगा दैट इज सेपरेट. इसलिए ये सेव करना मैंडेटरी है फॉर एवरी इंडिविजुअल. दे शुड गो फॉर ATC plus ATCCD 1B and save ₹2 lakh each and every year for their future, and obviously for minimizing and reducing the taxes as well. So that is very important. ये बहुत important है और बहुत जरूरी है कि आप ATC और ATCCD 1B में इतना पैसा लगाए और अपना टैक्स बचाए. तो these are the tax deductions available for ATC and ATCCD 1B. अगला देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ये देखिए ATC का उन्होंने एक चार्ट आपको दिया है कि किस तरह के रिटर्न रहेंगे. ELSS 12 से 15% के रिटर्न है, विच इज वेरी गुड वन, जिसको हम CAGR बुलाते हैं. दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है CAGR. 3 years रिस्क हाई है ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर. NPS 8 से 10% है. 60 साल तक आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें भी रिस्क हाई है. देन ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, 5 साल तक इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है. कंटिन्यू आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिस्क मीडियम है. टैक्स सेविंग FD 7 से 8%, सबसे कम रिटर्न है इसमें. 5 साल लो रिस्क है ही नहीं. PPF में 7.10%, 5 साल के लिए बड़ा लो रिस्क है इसमें भी. सीनियर सिटीजन 7.4%, आप ये 5 साल तक ले सकते हैं, उसके बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8% और सबसे अच्छी रिटर्न बेटा सुकन्या समृद्धि योजना में. तो यहाँ पे पैसा लगाना बहुत जरूरी है. 8.4% का रिटर्न है. और जब तक टिल गर्ल चाइल्ड रीचेस 21 years of age द रिस्क इज वेरी ऑब्वियसली लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास होता है. एंड partial withdrawal is allowed when she reached 18 years of age. So this also can be done as an extra investment option, Sukanya Samriddhi Yojana. And how much is that? It is obviously under section ATC और रिटर्न बड़े अच्छे 8.4%, क्योंकि PPF में 7 है और इसमें 8.5 है लगभग. तो 1.5% का कंपाउंडेड में बहुत फर्क पड़ता है 15 साल में. So ये करना चाहिए. That is a very good saving, Sukanya Samriddhi Yojana. So all these are very good savings if you can see here. Now this is for ATC
and ATCCD 1B. So let me repeat again, ये दोनों मिला के an employee, an assessee and Hindu undivided family can save maximum rupees 2 lakh per annum or actual amount of investment whichever is lower. इसमें save इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. So that is for ATC. I hope you got it. And this can be deducted from your total income. Now it may be from salary, from house property, from business and profession, capital gain or other sources, or it can be total of all 5. ये पांचों का टोटल भी हो सकता है, तो पांचों का टोटल लीजिए, उसमें से ये माइनस कीजिए, बचे वाला आएगा आपका टैक्सेबल इनकम. कितना टैक्स बचा सकते हैं मैंने अभी आपको बोला. और कुछ सेक्शंस है जो हमें देखने हैं. तो हमने एज ऑफ नाउ सिर्फ ATC और ATCCD 1B देखा. उसके बाद ये भी सेक्शन है जो आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 80TTA. वी आर ऑल हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट्स, और सेविंग बैंक अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है. ये इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बैलेंसेस बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग. पहले ये क्वार्टरली बेसिस पे होता था, आजकल ये डेली बैलेंस पे कैलकुलेट होता है. हाँ, बड़ा कम होता है इंटरेस्ट रेट, लेकिन इंटरेस्ट आपको मिलता है. आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आइडल रहता है, अनयूज्ड रहता है, that is qualifying for this interest on daily basis on the closing balance of your bank account there. So section 80TTA, interest on saving bank account आपको कितना मिलेगा और कितना उस पे टैक्स नहीं लगेगा. तो आपको जितना इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट पे, तो उस पे आपको पूरे साल के लिए 10,000 तक का इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80TTA. दैट यू कैन सी हियर. इफ यू आर एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यू मे क्लेम अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ रुपीज 10,000 पर एनम अगेंस्ट income or interest income from your saving account with a bank or a cooperative society or post office. तो इसमें 10,000 तक का इंटरेस्ट आपको एग्जम्प्टेड है. And do remember, this is claimed as reduction under section 80TTA. कितना ज्यादा से ज्यादा क्लेम करते हैं? रुपीज 10,000 पर एनम. आपका इमीडिएटली सवाल होगा कि ये टैक्सेबल कौन से हेड में होता है. अगर ये 10,000 के ऊपर है, then it will be taxed under the head of income from other sources. क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग बैंक डिपॉजिट है, which is not from your any of the regular source of income there. क्योंकि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है, उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड ये यहाँ पे क्वालिफाई होता है, अदर सोर्सेस में जाएगा. लेकिन अगर आपको इसको डिडक्शन लेना है तो 10,000 तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा साल का, तो डिडक्शन मिलेगा. 20,000 भी मिलेगा इंटरेस्ट, तो भी डिडक्शन 10,000 का मिलेगा. मतलब 20 माइनस 10,000 पे टैक्स लगेगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. याद रखिए, सेक्शन 80TTA आफ्टर ATC प्लस ATCCD 1B. उसी के साथ नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट डिडक्शन हमें जो देखना है, दैट इज 80D, जो आजकल की दुनिया में बड़ा इसेंशियल है. मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी कुछ हुआ तो 1-2 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं. सो यू शुड हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी. इट इज मस्ट फॉर एवरीबडी टू हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड इन दैट केस यू आर हैविंग 2 डिडक्शंस हियर. 2 सेपरेशन है. 1 डिडक्शन इज फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, दैट इज यू, योर पार्टनर एंड योर चिल्ड्रन, एंड along with that there is other deduction for your dependent parents. तो इनकम टैक्स ने यहाँ पे काफी ख्याल रखा है हमारा. वी कैन सी हियर बिकॉज देयर आर 2 सेट ऑफ डिडक्शन, one for you and your family members, another for your dependent parents. 2 deductions are there. Now for you and your family members, deduction is maximum rupees 25,000 per annum or actual premium paid for Mediclaim or health insurance policy, whichever is lower. यानी ज्यादा से ज्यादा आप कितना सेव कर सकते हैं. अगेन इट इज एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रीमियम भर सकते हैं 25,000 पर एनम का. फिर पॉलिसी मेडिक्लेम आपकी कितनी है, ये आपके लिए है. दिस इज मस्ट स्टूडेंट्स फॉर एवरीबडी. वैसे तो ये टैक्स में पड़ रहे, लेकिन एक इंडिविजुअल लाइफ में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए. और मैं तो बोलता हूं आप उसको मैक्सिमम यूज करो, because we don't know how life is going to behave with us, and any kind of medical emergency put the person into financial stress there. तो कम से कम वो फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाएगा, बिकॉज किसी की तकलीफ तो हम कम नहीं कर सकते, वो तो उसी को झेलनी पड़ती है. बट एटलीस्ट द फाइनेंशियल बर्डन विल बी टेकन केयर बाय दिस मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो यहाँ पे डिडक्शन excuse me, rupees 25,000 per annum for an individual employee or for an individual assessee and his family members or her family members, and extra deduction of rupees 25,000 per annum for dependent parents, that is mother and father. और वो अगर सीनियर सिटीजन होंगे, मतलब इफ योर पेरेंट्स आर मोर देन 60 years of age, then the same deduction is maximum rupees 50,000 per annum.
यानी 25,000 आपका और आपके फैमिली मेंबर का, 50,000 आपके पेरेंट्स का, और उसके साथ 5,000 रुपए प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप का एक डिडक्शन है, हर साल आप ले सकते हैं। यानी टोटल डिडक्शन यहां पे ले सकते हैं आप 80,000। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस हो सकती है कि आप भी सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, जो एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे दिया आप देख सकते हैं। देन इन दैट केस यू एंड योर पेरेंट्स कैन क्लेम मैक्स रुपीज 1 लाख पर एनम एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। सो 80D के तहत आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू एंड योर पेरेंट्स बोथ आर सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 पर एनम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 पर एनम और एक्चुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिक्लेम प्रीमियम विच एवर इज लोअर, और उसके साथ 5,000 का प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप का डिडक्शन, मतलब टोटल 25 प्लस 50 प्लस 5 दैट इज 80,000। और अगर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका भी 25, उनका भी 25 और 5,000 मेडिक्लेम, ये प्रिवेंटिव मेडिकल हेल्थ चेकअप का, मतलब 55,000 का डिडक्शन। ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन इनकम टैक्स बोलता है यहां पे ले सकते हैं आप मैक्सिमम रुपीज 1 लाख, प्रोवाइडेड यू एंड योर पेरेंट्स बोथ आर सीनियर सिटीजन। देन इन दैट केस यू कैन क्लेम मैक्सिमम रुपीज 1 लाख। सो दिस इज ऑल अबाउट 80D। 80D बड़ा मैंडेटरी सेक्शन है और एट द सेम टाइम हमें इसका डिडक्शन देना है 80D में फॉर एम्प्लॉय एंड हिज और हर फैमिली मेंबर्स रुपीज 25,000 पर एनम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेडिक्लेम प्रीमियम विच एवर इज लोअर। फॉर एम्प्लॉयज डिपेंडेंट पेरेंट्स again 25,000 per annum or actual amount of mediclaim premium whichever is lower. But if employees parents are senior citizen, then in spite of 25,000 it is 50,000 per annum or actual amount of premium paid whichever is lower, plus there is a separate deduction of preventive medical health checkup of rupees 5,000 per annum. यानी this is the total deduction applicable for section 80D। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 ही सेक्शन देखे, वैसे ये लेक्चर तो सबने देखना चाहिए। एवरी टैक्स पेयर जो सैलरीड बंदा है उन्होंने ये लेक्चर देखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका इसमें एक तो टैक्स सेव हो जाता है और लाइफ बड़ी सेफ हो जाती है, बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एज फार एज मेडिकल थिंग्स आर कंसर्न दीज डेज। और इसी के साथ 80C प्लस 80CCD 1B जो 2 लाख का आप सेविंग करते हैं, और आप अगर हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो वहां पे आपके 60-65,000 टैक्स तो ऐसे ही बचता है, उस पर रिटर्न मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। मेडिक्लेम लेना तो मैंडेटरी है बिकॉज दैट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड एज फार एज फाइनेंशियल स्ट्रेस इज कंसर्न। तो 80C प्लस 80CCD 1B plus 80 TTA, there is interest on saving bank deposit applicable maximum rupees 10,000 per annum, or 80D for mediclaim. These are the deductions which we are going to consider, and these are qualifying for every individual, maybe salaried or non-salaried. आप ये सारे डिडक्शन ले सकते हैं। ये अभी हमारे सम करने के काम में आएगा, वैसे ये जनरल लेक्चर है, सबके काम में आएगा, सबने देखना चाहिए। और ये तीनों ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज 80C, 80CCD 1B, 80 TTA तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है क्योंकि आपका सेविंग बैंक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और 10,000 तक का आपको इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड रहेगा अंडर 80 TTA। और आखिरी में 80D जो आपने जानबूझ के करना चाहिए, इंटेंशनली करना चाहिए, आज के जमाने की वो जरूरत है। So with this we are concluding this lecture. Next lecture we are going to see the sums on income from salary. So till that, thank you and have a wonderful day ahead. God bless you.